ये लो, हो गया रिकॉर्ड। Okay, ji. Sige, now what is classification? Classification means it's a scientific procedure in which you need to arrange the organisms in according to their features, their similarities and dissimilarities. So what happens is that we can easily make a connection among the organisms, that how we are related. We can also study the evolutionary origin among the organisms. The need of the classification is actually, number one, we could be able to understand the evolutionary relationship. Like for example, some of our DNA, or yes, some of our DNA match with the bacteria. Some of the DNA matches with the tree. आपको पता है? So as we go beyond our ancestor or our linkage, we are linking to some another organism and another which who belongs to another kingdom. ठीक है? एक तो we get to know our origin. Number two, only in the locality few organisms are present. ठीक है? They are not enough to study the whole species, so we need to know how many species are present in the world, so we can actually categorize them. Like there are many species of the frog. तो एक टाइप का फ्रॉग अगर मेरे पाकिस्तान में है, फॉर एग्जांपल 4 to 5 species of the frog are present, but in the whole world there must be, I'm just giving you example, 10 or 20 species. Do you think that 4 or 5 frog and the study of their feature is enough for me to make a whole kingdom or the classification for them, a whole feature for them? Can I write all the features on the basis of only those 4 species of the frog? Do you think it is enough? Or do I need the data of all the frogs in the world? ये मतलब अंडर एक ग्रुप आ जाएंगे तो कुछ भी और हाँ, ठीक है। तो आपके पास जो है वो एक प्रॉपर डाटा आ जाएगा। दैट डाटा जो है वो आपको हेल्प करता है कि किस फीचर में उसको रखना है। सो इन द एग्जाम्स हाउ द क्वेश्चन कम्स, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने आपको एक न्यू स्पीशी दे दी, ठीक है। दे विल गिव यू सम डिस्क्रिप्शन अबाउट द स्पीशी, कि उसके पास न्यूक्लियस नहीं था, या फिर उसके पास फ्लैजिला था, और इट मे हैव द क्लोरोप्लास्ट, और दे हैव कॉम्पोजिशन ऑफ द सेल वॉल, ठीक है। And on the basis of that new data, they would ask you to identify where would you place that organism in the certain kingdom. ठीक है? इसी तरीके से नए नए स्पीशीज मिल रहे होते हैं. So this classification helps them to arrange the organisms according to their features. ठीक है? So that we can study the similarities and dissimilarities. This is all about the classification, and the study of the classification is known as taxonomy. ठीक है? It's a branch of biology, taxonomy इसको कहते हैं हम. Okay, now all organisms, right, have their name, and you know that all the countries have the different languages. So the same organism present in the different countries, they would be called with a different name according to their language, right? So when all the biologists come together on a table to study something, आपको क्या लगता है कि फॉर एग्जांपल अगर कराची में, पाकिस्तान में, फ्रॉग को हम क्या बोलते हैं? मेंढक बोलते हैं उर्दू में, ठीक है। इंग्लिश में फ्रॉग बोलते हैं, ठीक है। हो सकता है पंजाबी लैंग्वेज में कुछ बोलते हो, सिंधी लैंग्वेज में कुछ बोल रहे हैं, राइट। जापानीज उसको कुछ और बोलते हैं, चाइनीज उसको कुछ और बोलते हैं। लेकिन जब अब हम बात कर रहे हैं एक ही टाइप की स्पीशी फ्रॉग की, एंड डिफरेंट डिफरेंट नाम है, तो जस्ट दूसरा बंदा है जो दूसरी लैंग्वेज बोलता है, उसको कैसे समझ में आएगा whom we are talking about? ठीक है। सो to to reduce this language barrier, that's why we have given a universal name, and that universal name is known as scientific name. Okay, तो ये इस वजह से scientific name आया, to reduce the language barrier and to give a universal name that's known as scientific name, which is known as binomial nomenclature.
ठीक है. Binomial nomenclature. Bi means, what do you mean by bi? two, Yes, two. Bi means two and nomial means name. Name. ठीक है. So there are two names. ठीक है. Two names. Nomenclature means a system. A system in which we are giving two names to an organism. ठीक है. Two naming system भी इसको हम कहते हैं. जिसमें you have two parts. जैसे हम हमारे नाम भी होते हैं ना, we have a first name, then we have a middle name, then we have a surname. ठीक है. इसी तरीके से organisms को भी हमने two name दिए हैं, first name and the second name. ठीक है. जैसे आपका नाम मीरब है, आपका फुल नेम क्या है? अभी आप अपना नाम नहीं बताना, ठीक है. आपका भी एक सेकंड नेम होगा, सही है, आपका सर नेम होगा. सिमिलरली ऑर्गेनिजम्स के पास भी फर्स्ट नेम और सेकंड नेम होता है. द फर्स्ट नेम इज नोन एज जीनस. ओके. जीनस. एंड द second name is known as species. The genus is always written with a capital letter and the species is written with the smaller letter. और जब फॉर एग्जांपल ह्यूमन, अगर मैं बात करूँ ह्यूमन की, तो ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज नोन एज होमो सेपियन. सो होमो इज द जीनस दैट इज रिटन विद कैपिटल एच. इसी तरीके से आपके पास दूसरा क्या है स्पीशी, दैट्स नोन, दैट इज द सेपियन एंड सेपियन विल बी रिटन विद स्मॉलर लेटर. ठीक है. इसी तरीके से आपके पास फ्रॉग है, तो फ्रॉग का जो फुल नेम है वो है राना टिग्रीना. ठीक है. इसी तरीके से आपके पास कुछ बैक्टीरिया है, उनके भी नाम हैं. प्लांट्स हैं, उनके भी इसी तरीके से टू नाम्स हैं. ठीक है. जो अच्छा, अब ये क्या है एक्चुअली, ये आपको हायरार्की बताता है. दिस देयर इज अ वास्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स. ठीक है. विद इन एनिमल्स यू हैव इनवर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट. ठीक है. विद इन अब आपको फीचर देखना है कि फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन. तो ह्यूमन के पास जो है वो क्या है, बैकबोन है. दैट्स ठीक है. अब बैकबोन के अकॉर्डिंग हम आ जाएंगे कौन सी कैटेगरी की तरफ, वर्टिब्रेट्स की तरफ. ठीक है. एंड फ्रॉम द वर्टिब्रेट हम क्या करते जा रहे हैं, उसको स्पेसिफाई करते जा रहे हैं. तो हम स्पेसिफाई करें कि वो कौन से इसमें ना कुछ हायरार्कीज हैं, फाइलम, क्लास, ऑर्डर. ठीक है. जीनस एंड स्पीशी, जो आपके 5090 का तो पार्ट नहीं है, लेकिन ये एक हायरार्की आती है आपके पास. ठीक है. उस हायरार्की में इवेंचुअली हम चीज़ों को स्पेसिफाई करते गए, करते गए, करते गए, करते मतलब हम जूम इन करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे. इवेंचुअली हम उसके लास्ट नेम तक पहुंच गए. तो मुझे ये पता चल गया कि अगर ये ह्यूमन है तो उसके पास हेरी स्ट्रक्चर है उसकी बॉडी पे. ठीक है. उसके ईयर्स जो है वो प्रोड्यूड आउट है, यानी बाहर की तरफ कॉमन है. और वो जो है वो गिव बेबीज को गिव बर्थ करता है. उसके पास मेमोरी ग्लैंड्स हैं. ठीक है. और उसके जो क्या कहते हैं, उसकी बैकबोन है, उसके पास वेल डेवलप्ड सेंट्रल सिस्टम है. तो हम उसके फीचर्स को, जो जो सिमिलैरिटीज थी, हम वहाँ पे उस तक पहुँचते पहुँचते सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज देखते देखते हम एक जगह पे स्पेसिफाई आ गए दैट द ह्यूमन बिलोंग्स टू द स्पीशीज सेपियन एंड टू अ जीनस होमो. ठीक है. तो दैट इज नोन एज होमो. सो वी आर नोन एज होमो सेपियन. ठीक है. होमो एक्चुअली एक जीनस है जो कि कहते हैं उन उन लोगों को जो यानी कि वो वाली कैटेगरी होती है एनिमल की, दोज हु कैन स्टैंड ऑन देयर 2 feet. सही है. और क्या कहते हैं, ये उनको जैसे अगर आप चले जाओ मंकी की फैमिली में, तो मंकी के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज है, जिसमें गोरिल्लास भी हैं. ठीक है. फिर आपके पास ऐसी कैटेगरी है जो कि यानी गोरिल्ला 2 feet पे खड़े होते हैं. तो हम जो है उनकी क्लोजली रिलेटेड है. ठीक है. लेकिन येट वी आर स्टिल डिसिमिलर फ्रॉम देम. तो इस तरीके से हम जो स्पीशी होमो से तो बिलोंग कर रहे हैं, ये वो दूसरा जो मंकी है वो भी होमो से बिलोंग कर रहा है. बट मैं कैसे डिफरेंट हूँ उससे, बिकॉज आई एम सेपियन. सेपियन की कैटेगरीज क्या हैं कि दे हैव अ वेल डेवलप्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम. दे हैव, दे कैन थिंक, दे कैन डिसाइड, दे हैव अ चॉइस. तो ये वाली कैटेगरी दूसरे एनिमल्स में नहीं है, विच मेक्स मी अ सेपियन. सो आई बिलोंग टू होमोजीनस along with the sapien is my species. क्लियर हुआ आपको ये कि किस तरीके से हमने इसको
यूज करते हैं हम होमोसेपियन के टर्म को, एंड दैट स्पीशी इज टेलिंग मी एक्चुअली, मैं जो स्पीशी हूँ, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन हूँ, ठीक है, आई एम होमोसेपियन, आई वुड बी एबल टू प्रोड्यूस द fertile offspring if I'm going to mate within my own species. अगर ह्यूमन ह्यूमन से मेट करेगा तो ही वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकेगा, एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्पीशी, व्हेन मेंबर्स ऑफ द ये आपके a group of organism which can interbreed and produce fertile offspring. This is the definition of species, which can interbreed. Like I can interbreed with a human, but I cannot interbreed with the same genus, विद द मंकी, यानी या फिर और कोई और एनिमल हु बिलोंग्स टू अनदर जीनस, ठीक है, मे बी द ऑर्गेनिज्म विल बी रिप्रोड्यूस, बट दैट ऑर्गेनिज्म हु हैज बीन प्रोड्यूस्ड कैन बी इनफर्टाइल, विल बी स्टेराइल, उससे आगे जनरेशन नहीं चलेगी. सो स्पीशीज शुड बी सेम, तो फर्टाइल होगी. अगर जीनस आपके पास जो है वो सेम हो लेकिन स्पीशी डिफरेंट हो, ठीक है, तो आपके जो है जो भी प्रोजेनी या बेबी बॉर्न हो रहा है वो इनफर्टाइल होगा. जिसको अगर आप देखो, आई हैव रिटन द येलो बॉक्स, व्हेन अ मेंबर ऑफ द सेम जीनस बट डिफरेंट स्पीशी मेट, द ऑफस्प्रिंग आर यूजुअली स्टेराइल और इनवायबल. फॉर एग्जांपल म्यूल. Mule is an organism who is a combination of a male donkey and a female horse. ठीक है. Then you have liger. एक आपके पास liger है. Liger. Liger is a combo of tiger and a lion, but they are sterile. ठीक है. तो ये जो है आपके पास स्पीशी, जीनस एंड द बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में टॉपिक यहाँ पे कवर हो गया. ठीक है. एनी क्वेश्चन सो फार अबाउट इट? यू नीड टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ स्पीशी. Yes, miss. ओके. Clear. अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है? वो कोई भी रैंडम सा नेम दे देंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ठीक है. अब उन्होंने ऐसे लिख दिया आपको, फॉर एग्जाम्पल एक है आपके पास, और मलेरिया इज कॉज्ड बाय, हु कॉजेज द मलेरिया? Anopheles mosquito. वो तो मॉस्किटो है ना. हु कॉजेज द मलेरिया? Anopheles. प्लाज्मोडियम. Plasmodium. Plasmodium is actually the culprit. Mosquito is only the vector who is transferring the plasmodium. ठीक है. एक्चुअल जो जो मलेरिया कॉज करता है वो प्लाज्मोडियम होता है. अब देखो प्लाज्मोडियम का वो क्या लिख सकते हैं, मलेरिया इज कॉज बाय प्लाज्मोडियम. द साइंटिफिक नेम ऑफ द प्लाज्मोडियम इज, अब देखो मैं आपको तीन ऑप्शंस दे रही हूँ. प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, ठीक है, फेल्सीपेरम, देन प्लास प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, ठीक है. फिर आया आपके पास प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, ठीक है. और यस, फिर आ गया आपके पास प्लाज्मोडियम falciparum. It's a full name. It's a scientific name of that plasmodium who causes the malaria in human. Okay. अब मुझे बताओ आप, among all these four options, ठीक है, which is the correct one? A1. A वाला. Why? Because जो genus name है, that is always with a capital letter. Very good. Whereas जो दूसरा आपके पास species name होता है वो हमेशा lower case से start होगा. लोअर केस में होता है. ठीक है. क्लियर. सो इस टाइप के आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं. और फॉर एग्जांपल उन्होंने क्वेश्चन के अंदर जो है वो ऑर्गेनिज्म का नाम लिख दिया. ठीक है. एंड इन अ क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड राइट ऑन द जीनस ऑफ इट. फुल नेम, उससे साइंटिफिक नेम लिख दिया, उसमें से आपको जीनस बताना होगा या स्पीशी बताना होगा. 1 मार्क में आपके पास ये क्वेश्चन आता है. ऑलराइट. ये हमारा ये वाला पार्ट हो गया. नाउ when we are studying the feature of our organism, we study in a way that we have two features. ठीक है. Yes or no. So it will lead us towards the accurate organism. This type of navigation
is known as dichotomous key. ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसका फीचर है, हम जब उसको स्टडी कर रहे हैं, आपके पास ऑर्गेनिजम्स गिवन है, यू डू नॉट नो देम, बट अकॉर्डिंग टू द फीचर यू कैन आइडेंटिफाई देम, इट विल हेल्प यू टू रीच टू दैट ऑर्गेनिज्म. ठीक है, सो क्या है कि हर फीचर, हर के दो दो ऑप्शंस दिए हुए होंगे. जैसे इफ देयर इज अ और बटरफ्लाई, ठीक है, तो उसके कैसे फीचर्स होंगे, हैव विंग्स, नो विंग्स. अब बहुत सारे इसके अंदर ऐसी पिक्चर है जिसमें विंग्स होंगे. ठीक है, जिसकी एग्जांपल आपके पास मैं आपको दिखाऊं डायकोटोमिस की. दिस इज डायकोटोमिस की. ठीक है, देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स गिवन टू यू, यहाँ पे 4 पिक्चर्स बनी हुई है. ठीक है, और हर एक क्वेश्चन के 2 ऑप्शन है. यू नो हाउ टू सॉल्व द डायकोटोमिस की, राइट? आती है ना आपको करने? Yes. ओके, सो एक ऑप्शन होगा विच विल लीड यू टू गो टू, उसका हिंट जो होगा वो दूसरे स्टेप पे होगा. यानी सॉल्व आपको दोनों करने हैं, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन किसी दूसरे स्टेप में होगी. जैसे अ विंग कवर्ड बाय एन एक्सोस्केलेटन, यू नो, दे आर आस्किंग अबाउट द विंग विच हु हैज विद द एक्सोस्केलेटन. उसकी फर्दर इंफॉर्मेशन कहाँ है? स्टेप, गो टू स्टेप 2. यू विल कम टू स्टेप 2. यू हैव 2 ऑप्शंस. A body has a round shape. So wings, exoskeleton and a round shape. कौन सा है आपके पास राउंड शेप वाला यहाँ पर? Just tell me the color. Red. Red one. ठीक है. And you don't have to remember the name of the, you don't have to remember the scientific names. ठीक है. आपको सिर्फ यहाँ पे उसको फीचर्स आइडेंटिफाई करने आने चाहिए. यू आर एबल टू सॉल्व द पार्ट ए. ठीक है, अब यही इंफॉर्मेशन, विंग्स, exoskeleton, and the part B says body has an elongated shape. Who has the elongated shape? पहला वाला, दिस वन, No, green वाला. दिए ग्रीन वाला. ठीक है, ओके. अब हम इसका पार्ट बी सॉल्व करेंगे. वी हैव सॉल्व पार्ट 1. नाउ विंग्स नॉट कवर्ड बाय द एक्सोस्केलेटन, जिसके पास नहीं है विंग्स. ठीक है, इसकी फर्दर इंफॉर्मेशन, गो टू स्टेप नंबर 3. विंग्स पॉइंटिंग आउट फ्रॉम साइड ऑफ द बॉडी, साइड पे निकल रहे विंग्स. Side पे. दे हैव विंग्स बट साइड पे जा रहे, साइड्स पे. ब्राउन और ब्लैक वाला जो बीच में. साइड में यानी ऐसे बिल्कुल इसकी साइड्स में निकल रहा है. अच्छा, साइड में. ओके, ये वाला ब्लू वाला. ब्लू वाला, ठीक है. ओके, दूसरा बता रहा है वो क्या, कि विंग्स नॉट कवर्ड बाय एन एक्सोस्केलेटन, यानी विंग्स हैं लेकिन उसके बाद एक्सोस्केलेटन नहीं है. ठीक है, विंग्स पॉइंट टू द पोस्टीरियर ऑफ द बॉडी, यानी पीछे की तरफ जा रहे. पोस्टीरियर मींस टुवर्ड्स बैक. ब्राउन वाला. ये ब्राउन वाला हो गया. ठीक है, दिस हाउ वी सॉल्व द dichotomous key. So it's a tool actually used to sort organisms by pair similarities or differences based on a series of the statement. This is actually the dichotomous key. ठीक है, ओके जी, ये हमारा कवर हो गया dichotomous key. Now classification of animals. Your animal classified into 2 categories. One are known as invertebrates, others known as vertebrates. Invertebrates mean who do not have the backbone, and the vertebrates mean who have the backbone. So invertebrates में you have many other categories, but particularly in your syllabus you have one category known as arthropods. ठीक है, arthropods is actually the insect family, right? Insect family. In the arthropods, arthropods is divided into 4 different subcategories. Crustaceans. Crustaceans are lobster family. A crab family. Arachnids. Arachnid is a spider family. Insects. Insects में you have cockroach, you have ants, ठीक है. You have क्या कहते हैं, butterfly and myriapods. Myriapods are those who crawl. जैसे सेंटीपेड हो गया, मिलीपेड हो गया आपके पास. ठीक है, दे आर द क्रॉलिंग वंस एंड दीज 4 आर आर्थ्रोपोड. तो उसको आप याद कैसे करोगी इजीली? आई कैम. व्हाट इज आई कैम? आई कैम को कैसे याद रखोगे? आई फॉर insects, C for Cruciates. crustaceans. Crustaceans. Okay, A for Arthropods. A for
आर्थ्रोपोड तो कैटेगरी है, उस आर्थ्रोपोड में 4 सब कैटेगरीज हैं, तो मैंने एक निमोनिक बना दिया उसको याद करने का, आई कैम. सो आई फॉर इंसेक्ट, सी फॉर Yes. क्रस्टेशियंस, ए फॉर Arsenic. एरिकनाइट्स. ठीक है, एरिक नाइट्स, एच इज साइलेंट, एरिक नाइट्स. एंड एम फॉर Myopod. myriapods. ठीक है, सो arthropod is the category and these 4 are the subcategories. ठीक है, clear this part? Yes. All right, now coming to the vertebrates who have the backbone, and the vertebrates further divided into two characters, warm-blooded and cold-blooded. ठीक है, there are 3 subcategories who are cold-blooded: fish, reptiles, and amphibians. And warm-blooded में आपके पास bird and the mammals. These all 5 are uh, part of your syllabus. इन सब के फीचर्स आपको याद करने, एंड यू शुड बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ईच अदर. सही है जी. लेट्स गो थ्रू द आर्थ्रोपोड्स. इनवर्टिब्रेट्स आर फाइलम. फाइलम यू नो इट्स, अच्छा ये देखो, मैं आपको बोल रही थी ना कैटेगरी करते जा रहे. इनवर्टिब्रेट्स के अंदर देखो कितने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं. सही है. फिर उसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जिनके पास एक्सोस्केलेटन है, जो इंसेक्ट बेस है, उनको हमने ना आर्थ्रोपोड का नाम दे दिया. उस आर्थ्रोपोड में मजीद हम क्या करें, स्पेसिफाई करें वो जिनके पास जो है क्या कहते हैं, 5 पेयर ऑफ लेग्स हैं, और जो वाटर में रहते हैं, दे हैव सेंसिटिव आईज, उसको मैंने लॉबस्टर की फैमिली में डाल दिया, क्रस्टेशियंस. देन दोज हु हैव 8 लेग्स, ठीक है, उनको एरिकनाइट बोल के मैंने उसकी फैमिली में डाल दिया. इंसेक्ट्स हु हैव 3 पेयर ऑफ लेग्स, दोज हु हैव विंग्स, दे हैव एक्सोस्केलेटन, उसको मैंने इंसेक्ट के फैमिली में डाल दिया. And those who can crawl, who have the hydrostatic pressure in their body, ठीक है, and they have many legs, उसको मैंने myriapods के फैमिली में डाल दिया. तो देखो मैंने इन सबको कैटेगराइज किया. दिस इज क्लासिफिकेशन. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पार्ट और उनके फीचर्स. द फर्स्ट वन इज इंसेक्टा. आर्थ्रोपोड में हम करेंगे इंसेक्टा. इंसेक्टा के फीचर्स के अंदर हाउ द इंसेक्ट्स लुक लाइक. नंबर 1 फीचर, it has 3 body parts: head, thorax, and abdomen. Head, thorax, abdomen. What do you mean by thorax? ये लिखा हुआ है thorax. Abdominal. नहीं, जो मिड वाला एक पार्ट होता है. हाँ, हमारी बॉडी का जो मिड पार्ट, जिसको हम चेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, चेस्ट एरिया इज नोन एज thorax. तो सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, द बॉडी पार्ट्स डिवाइड इनटू 3, एंड दिस इज द ओनली आर्थ्रोपोड हु हैज 3 बॉडी पार्ट्स. बाकी सबके 2 बॉडी पार्ट्स है. ठीक है, इट्स वन ऑफ द फीचर विच यू कैन रिमेंबर. इसके 3 बॉडी पार्ट्स है, बाकी जो 3 बचे हैं आई कैम में से, उनके 2 बॉडी पार्ट्स है. ठीक है, 3 बॉडी पार्ट्स में क्या है, इट हैज हेड, इट हैज thorax, इट हैज abdomen. Okay, what are the further features they have? They have 6 legs or 3 pair of legs. ठीक है, और आपको क्या याद रखना है, 1 pair of antenna. Their body is made up of exoskeleton. What is exoskeleton? Is divided into 2 parts or having the vertebrate column. नहीं नहीं, एक्सोस्केलेटन. व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोस्केलेटन, ये लिखा हुआ है एक्सो. व्हाट इज स्केलेटन? तो स्केलेटन क्या होता है? लाइक एक स्केच कह लें या कुछ ऐसे कह लें. ओके तो जैसे बोन से बना हो. ओके, यस, बोन. स्केलेटन एक्चुअली गिव्स द फ्रेमवर्क टू द बॉडी, शेप देता है बॉडी को, सपोर्ट देता है बॉडी. ठीक है, लाइक ह्यूमन का स्केलेटन कहाँ है, बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर? अंदर. बॉडी के अंदर. ठीक है, तो वो मुझे अंदर से सपोर्ट कर रहा है, मेरे ऑर्गन्स उसमें सेफ है, मेरी बॉडी को उसने शेप दिया हुआ है. अगर मैं स्केलेटन निकाल दूं तो माय बॉडी विल लुक वेरी लिम्पी, आई वोंट बी एबल टू वॉक इवन. ठीक है, तो मेरी बॉडी को सपोर्ट किया हुआ है स्केलेटन ने, जो अंदर है. अंदर है तो वो क्या कहलाएगा, एंडोस्केलेटन. समथिंग विच इज इनसाइड, तो वो क्या हो जाएगा, एंडोस्केलेटन. अगर ऐसा उसको बॉडी फ्रेम मिल रहा है जो उसकी बॉडी से बाहर बना हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे, exoskeleton. And you won't be seeing the bones or anything. This exoskeleton is made up of calcium carbonate.
विच इज तो हार्ड एंड पता कैसे स्टिफ। चलता है कि एक्सो है या एंडो है? क्या चीज बेटा? पता कैसे चलता है कि ये स्केलेटन एक्सो है या एंडो है? Arthropods have exoskeleton, all of them. ओके। ओके। एंडोस्केलेटन आता है वर्टिब्रेट्स में। आर्थ्रोपोड्स हैव एक्सोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन किसके पास है? आपके वर्टिब्रेट्स के अंदर। ठीक है, क्लियर? ये पोर्शन क्लियर हो गया आपको? ओके, इसका डायकोटोमी स्कीम मैंने आपको बता दिया। अच्छा, दे आर सर्टेन और ऑर्गेनिज्म, आप पेपर में आपके पास इस तरह का कोई ऑर्गेनिज्म दे देंगे, ठीक है, और वो बोलेंगे इसका फीचर बताओ, लिस्ट एनी थ्री फीचर्स, फिर आपको फीचर बताना होगा उसका। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द आर्थ्रोपोड आर हनी बी, बीटल, ड्रैगन फ्लाई एंड ग्रास हॉपर। ओके, फिर नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास, नेक्स्ट क्लास क्रस्टेशियंस, क्रस्टेशियास, ठीक है, दैट्स द क्रैब फैमिली। What are the features they have? There are number one feature. Now they have only two body parts. That is known as cephalothorax. उनके सिर्फ हेड रीजन है और एब्डोमेन रीजन है। क्या है उसके पास? हेड रीजन है और एब्डोमेन रीजन है, एंड दैट इज नोन एज cephalothorax. अब cephalothorax है क्या? इनके पास एक cephalothorax है और एब्डोमेन है, सॉरी। अब जैसे अभी आपने पढ़ा कि द इंसेक्ट्स हैव थ्री बॉडी पार्ट्स, हेड, thorax एंड एब्डोमेन, राइट? इन क्रस्टेशियंस में क्या होता है कि द हेड एंड द thorax इज फ्यूज टुगेदर, वो जुड़ जाते हैं। आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, वो ऐसे फ्यूज हुए हुए होते हैं, आपको लगता है कि हेड और thorax एक ही पार्ट है। सो दैट फ्यूजन इज नोन एज cephalothorax। ठीक है, क्लियर हुआ? ये सिफेलोथोरैक्स, सिफेलो कहते हैं हेड को, थोरिक्स हो गया आपका चेस्ट एरिया, सिफेलोथोरैक्स। सो द फ्यूजन ऑफ द हेड और एंड द थोरिक्स रीजन, दिस पोर्शन इज नोन एज सिफेलोथोरैक्स। तो उसके पास कौन से बॉडी पार्ट्स है? सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन। इट हैज ओनली टू बॉडी पार्ट्स। इज इट क्लियर टू यू? यस। All right. What other features they have? They have exoskeleton, and they have two pairs of antenna which are sensitive to chemical to and touch. यानी केमिकल उसके ऊपर अगर लगे या टच लगे, यानी किसी भी चीज का टच हो, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म टच करता है या ह्यूमन टच करता है, सो दे क्विकली रिस्पॉन्ड टू इट, और दे क्विकली रिसीव द मैसेज, ठीक है, बिकॉज दे आर सेंसिटिव, सो दे कैन रिस्पॉन्ड टू इट। ये इनकी सेंसिटिविटी है, ठीक है। उसके अलावा दे हैव कंपाउंड आईज, ठीक है, कंपाउंड आईज विच इज मेड अप ऑफ मेनी लेंसेस, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंड आईज? एक होता है सिंपल आईज, एक होता है कंपाउंड आईज, क्या मतलब हुआ? जिससे जब ज्यादा बड़ी ओके। और ज्यादा जिसे कहते हैं, मतलब ज्यादा उनके पास इंटेंसिव चीजों को देखने की या कैच करने की, लाइक या यू कैन से दैट। दैट। बिल्कुल ऐसा है कि उनकी ना आईज में बहुत सारी लेंसेज होती है, तो दैट्स व्हाई दे इज नोन एज कंपाउंड। कंपाउंड का क्या मतलब है? मैनी, ठीक है। तो दे हैव मैनी लेंसेज। एक ही, जैसे मेरे आई में कितनी लेंस है? एक ही लेंस है ना, उनके पास बहुत सारी लेंसेज होती हैं, दैट्स नोन एज कंपाउंड आईज। दैट्स व्हाई द इंसेक्ट्स आर एबल टू स्केप। आपको पता है ये बात? अब मच्छर तुम्हें काट रहा है, तुमने हाथ उठाया मच्छर को मारने के लिए, वो इतनी देर में भाग जाता है। कैसे उसको पता चला? बिकॉज इट हैज कंपाउंड आईज। उसने आपकी मूवमेंट को, उसने आपकी टच को जो है वो क्या कर लिया, क्या कहते हैं, देख लिया, ठीक है। तो उसको ये एनालाइज करने में आसानी हुई। सो द क्रस्टेशियंस आल्सो हैव दिस थिंग दैट्स नोन एज कंपाउंड आइज, ठीक है। एंड दोस कंपाउंड आइज आर लाइट सेंसिटिव सेल्स। लाइट सेंसिटिव सेल्स मींस मतलब लाइट इंटेंसिटी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं कर पाएगा। सो दैट्स व्हाई यू मे फाइंड देम अंडर द रॉक। क्रैब आपने देखा है कभी? हैव यू एवर सीन क्रैब? केकड़ा जिसे कहते हैं उर्दू में। कि रियल लाइफ में देखा है कभी क्रैब?
जी मिस। जी। तो वेयर यू फाइंड देम, ऐसे नॉर्मली घूम रहे होते हैं या यू मे फाइंड देम अंडर द रॉक, अंडर द रॉक और दे और आर, या फिर किसी शेडेड एरिया में होते हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर लाइट सेंसिटिव टू। ठीक है। ओके। नाउ दे हैव गिल्स टू ब्रीथ एंड दे हैव जॉइंटेड लिम्स। ठीक है। एंड दे हैव 5 पेयर्स ऑफ लिम्स। इनके पास 5 पेयर्स होते हैं। सही है। सी, 5 पेयर्स। क्रैब, लॉबस्टर भी क्रस्टेशियंस की फैमिली से, एंड दे आल्सो हैव एक्सोस्केलेटन। ठीक है। दे हैव अ पेयर ऑफ एंटीना, some of them have pair of antenna, you can see they have pair of antenna. ठीक है। ये हो गया आपके पास, this is a dichotomous key on which you can have the points. Have visible body segments, यानी कि 2 body segments, exoskeleton है या नहीं है, 2 pair of antennas हैं या नहीं है, compound eyes है कि नहीं है, और more than 4 jointed limbs है कि नहीं है. These are the features on which the dichotomous key can be made. सही। ओके। क्लास स्टॉप होती है तो रीजॉइन कर लेना आप। जी मिस। Okay, next part you have myriapods. Myriapods, again, they also have cephalothorax. ठीक है। They also have cephalothorax and the abdomen. 1 pair of antenna. They have simple eyes. ठीक है। Hmm. And if you see their body, they have